Hello everyone, welcome to our channel. So this is a strategy video for quantum mechanics, and this is going to be one of its kind video on my YouTube channel where I will be sharing a 2-month complete strategy for quantum mechanics for your December NET exam. Quantum mechanics consists a huge portion. In part B 4 to 5 questions and in part C 3 to 4 questions. That means approximately 35 to 45 is the range of quantum mechanics. So to score maximum in this quantum mechanics, what you can do is you can practice problems, because you have to practice those problems, those advanced problems that are going to appear in your CSIR NET exam. So this video is mainly for non-beginners, those who are preparing about 6 months, 7 months, 8 months and are ready to appear for December NET exam. That is, they have only 2 months left in their exam. So what should be their strategy for these 2 months for quantum mechanics? I am not talking about other subjects. There are whole lot of other subjects, but क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू कि आपको क्या करना है क्वांटम मैकेनिक्स में. लाइक जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, इट इज़ लाइक कि आप फॉर्मूला रिवाइज करके चले जाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. इससे काम नहीं चलने वाला अब आपका. वाई? बिकॉज द क्वेश्चन कमिंग इन दिस एग्जाम is like higher order thinking question where you have to apply your mind. आपके अपने दिमाग को शार्प करना पड़ेगा. फॉर दैट शार्पनेस इन योर माइंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. सो कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है एंड कितना प्रैक्टिस करना है, वीक वाइज प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ इन 2 मंथ्स के लिए. एंड स्पेशली कहाँ से प्रैक्टिस करना है, रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू टेल यू. आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन यू. आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना, बट टेक इट एज अ जर्नी. So if you are taking it as a journey for 2 months, you will definitely see benefits in yourself. You will gain confidence to approach advanced new problems that are coming in exam. You will not be like अब क्या करें एग्जाम में, एकदम से न्यू प्रॉब्लम्स आ गई तो सब डिफिकल्ट है, मेरे से तो एक भी नहीं हो रही है. सो यू विल नॉट फील लाइक दैट. अब आपके पास जो टाइम है आपको यूटिलाइज करना है उस टाइम को 2 सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांटम एंड स्टैटिस्टिकल. ये जो स्ट्रेटजी है वो भी क्वांटम के लिए, भी स्टैटिस्टिकल की भी वीडियो आने वाली है, बिकॉज these two are such subjects that the questions are coming with variation. So to tackle that variation you have to practice that sort of variations, and there are some books that can offer you such a wide range of variety of questions where you can practice, and those also contain solutions within them. So questions and solution both are there, so you can easily practice. I have divided the topics into 2 sections as they are in the exams, like part B and part C. ऐसा नहीं है कि पार्ट बी में जो टॉपिक्स लिखे हैं पार्ट सी में नहीं आ सकते हैं, बट मेनली द डिवाइडेशन इज लाइक दिस. एंड if you are a non-beginner, you have practiced, you have revised all these topics, then you must have known that which topics from these are easy for you and which are difficult for you. So write these topics and mark topics as your easy topic and difficult topic. Why I am saying that, it will get clear to you after some time. So you have to mark which are easy topics for you, which are difficult topics you. ऐसा नहीं है कि easy टॉपिक जो आपके लिए है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता. यस, देयर कैन बी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दैट, बट एक बार मार्क कर लो. आपकी प्रैक्टिस के बेस पे आपको इस टॉपिक के लाइक फॉर्मूला अच्छे से याद रहता है, आप इसके प्रीवियस ईयर भी किए, आप लोग अच्छे से कर पाए, तो दैट इज इजी टॉपिक फॉर यू. जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई विल बी, मैं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, सो दैट इज कैन बी डिफिकल्ट टॉपिक फॉर यू. सो इजी टॉपिक वो है कि भाई दिखते ही मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूंगा, बाद में पता लगेगा अरे तो क्वेश्चन टफ था.
इजी टॉपिक के लिए भी क्वेश्चंस हार्ड बना सकते हो, कितने भी हार्ड बना सकते हो, तो आपको पहले मार्क करना है कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है, डिफिकल्ट है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको मैं रिसोर्सेज दूंगा और कैसे प्रैक्टिस करनी है वीक वाइज। तो बेसिक्स ये कर लेना, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है पार्ट बी में, लेकिन हम इसे छोड़ जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, स्क्रोडिंजर इक्वेशन से, इससे रीइंफोर्स्ड थ्योरम से, दिस आर एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वेक्टर्स, मैथमेटिकल टूल्स, इसमें आपका सब आ जाएगा, पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन, मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सब आ जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। फिर पार्टिकल इन ए बॉक्स, वन डायमेंशन, पहले तो वन डायमेंशन पे ही क्वेश्चन आते थे विद आइगन वैल्यूज, वेव फंक्शंस। अब टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन पे क्वेश्चन आने लग गया है। डीजनरेसी को देता है, उसमें दो पार्टिकल डाल देगा, मतलब इसकी मिक्सिंग करेगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स की, कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, टू नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन टू डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। वो मिक्सिंग करेगा ऐसे, क्योंकि उसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करना है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी होगी। इसमें वो डीजनरेसी से पूछता है। फिर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वॉल्स की लेंथ आपको उसने बढ़ा दी है, कम कर दिया है। फिर वो प्रोबेबिलिटी पूछता है बिटवीन 0 to L/4, 0 to L/8, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर फाइनाइट पोटेंशियल वेल, नहीं वो बैरियर्स वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर जो आपके पोटेंशियल की हाइट होती है, विड्थ होती है, वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, बिकॉज दे आर इनफाइनाइट पार्टिकल इन ए बॉक्स, उनकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, विड्थ इज अ फाइनाइट। बट इसमें क्या होता है, जो विड्थ है, विड्थ और हाइट दोनों फाइनाइट होती है, तो उसमें वेव फंक्शंस कैसे होते हैं, टनलिंग कैसे होती है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, इन पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे लिए ये टॉपिक इजी था, ये टॉपिक इजी था, बट ये टॉपिक मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो जैसे जब इसका क्वेश्चन आता था ना, तो मैं एक बार स्किप करने की कोशिश करता था, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता था कि मुझे पता लग जाता था कैसा है और मैं कर सकता हूँ कि नहीं। बट मुझे लगता था ये डिफिकल्ट है, तो मैं इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करता था, फर्स्ट राउंड में नहीं। फर्स्ट राउंड में दोज टॉपिक्स विच आर इजी फॉर मी, दोज टॉपिक्स विच आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं इसका क्वेश्चन कर लूँगा, तो इसका मैं नहीं करता था एक बार। ये मुझे इजी लगता था, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पहले वन डायमेंशन पे ग्राफ्स पे क्वेश्चन आते थे, एनर्जी आइगन वैल्यू, वेव फंक्शन, डीजनरेसी। डीजनरेसी में यहाँ टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन का कंसेप्ट यूज हो जाता है। हैमिल्टोनियन देगा टू डायमेंशन में, एक एनर्जी की आइगन वैल्यू देगा और बोलेगा इसकी डीजनरेसी बताओ। इसमें भी आइडेंटिकल पार्टिकल को मिक्स कर देता है, वन डायमेंशन में दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है, ऐसे मिक्सिंग हो रही है। फिर हाइड्रोजन एटम, एंगुलर एंगुलर ऑर्बिटल स्पिन, सब तो ये आपको पॉलीमेट्रिसेस, एल स्क्वायर, इनका आइगन वैल्यूज, इनके आपस में रिलेशन, कम्यूटेटर्स, हाइड्रोजन एटम के अंदर रेडियल वेव फंक्शन, एंड देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उनके कर्व्स कि कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, कहाँ पे जीरो हो रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं इसके, जो वेव ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये टाइफर के एग्जाम से मिलेंगे, टीएफआर के एग्जाम के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको वेव फंक्शन देगा, नीचे ग्राफ्स बना देगा 4 रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, बताओ इसमें से कौन सा, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी। फिर पार्ट सी में टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, ये तो आ ही रहे हैं क्वेश्चन, इजी टू टफ मॉडरेट लेवल के, बट ये भी आने लग गया टाइम डिपेंडेंट। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, फेब 2022 में इसका क्वेश्चन आया था, और बाय चांस, मैं लक बोल दो, मैं ये टॉपिक करके गया था, पता नहीं क्यों करके गया था, बट मैं टॉपिक करके गया था, बिकॉज आई हैव ए फीलिंग दैट कि इसका क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे हलवा क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका आया, जो इनिशियल से फाइनल स्टेट में प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन वेयर परटर्बेशन इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। तो इस पे क्वेश्चन आया था, और बिल्कुल इजी, लाइक पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला था, बट टॉपिक करके नहीं जाता तो मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता होता, तो ये भी करके जाना। आजकल इसमें से क्वेश्चन आने लगा है, डब्ल्यू के भी वेरिएशन इसमें तो हमेशा से आ रहा है, तो इसमें टफ से टफ क्वेश्चन आता है और इजी से इजी भी आता है, इसकी प्रैक्टिस करने पे। सेंट्रल पोटेंशियल, स्कैटरिंग, बोर्न अप्रोक्सीमेशन, जैसे ये टॉपिक था, ये मेरे लिए डिफिकल्ट टॉपिक था, तो मैं इसका, क्योंकि इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो मैं इसको डिफिकल्ट टॉपिक मानता था। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में करने की कोशिश करता था। तो जब तुम मार्क कर लोगे अपने इजी टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स, तब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस करने से क्या होगा, तुम यूज टू हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस। एक तो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन को पढ़ने की, क्वेश्चन पेपर में एकदम से नए क्वेश्चंस देखोगे घबरा जाओगे।
लेकिन पहले ही एक बुक आपके पास है जिसमें से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार देखने में टफ लगता है, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं अगर, तो समझ आने लगता है। तो ये तुम्हारी जर्नी है 2 महीने की, जो तुम अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन टैकलिंग द न्यू प्रॉब्लम्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन किया हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, न्यू क्वेश्चन आएंगे, नया कुछ, न्यू कंसेप्ट, नया वेरिएशन। तो उसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा, हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसीड इन अ क्वेश्चन। तो वो आपको बुक्स जब आप वो करोगे जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से आपको आएगा। और मैं आपको रिसोर्सेज बताता हूँ जहाँ से आपको ये सब करना है। सो दिस इज योर लिस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, वेयर टू प्रैक्टिस। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। इट इज़ नॉट लाइक कि यू हैव प्रिपेयर्ड योर शॉर्ट नोट्स, रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस and attack all the problems in your exam, because the problems are of wide variety, wide variation. So to practice, these are your resources, how you are going to practice, from where you are going to practice. Okay, it will be like कि तुम घबरा जाओगे उधर, you will not have that much confidence of dealing with new questions. So आपको new question से deal करने के लिए करना पड़ेगा ये। और it's not like कि मैं आप पे ये थोप रहा हूँ, it's your choice. Take it as a journey and then proceed, and you will feel like yes, I have gained some confidence in dealing with new problems. So previous 4 net exams कर लेना, because the net exam is of like 280 marks, attempt करना होता है 200 का, and पास करने के लिए 85-90। सो देर आर मच वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल जो हम छोड़ देते हैं। एक बार उन्हें पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, कैसे क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्या है, 3 जस्ट एग्जाम्स कर सकते हो तुम प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद जो मेन प्रैक्टिस करनी है इन 2 मंथ्स के लिए, ये तुम्हारी इन बुक से है। मैंने कौन सी बुक फॉलो की थी वो भी बताने वाला हूँ, और वीक वाइज प्लान बताने वाला हूँ कितना कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पहला आपके लिए बुक है वाई के लिंक का सीरीज है 8 बुक्स का। उसके लिए आपको इसमें से एक क्वांटम के लिए ये बुक लेनी है, रेफर करनी है, और एक स्टैटिस्टिकल के लिए ये बुक रेफर करनी है। 2 सब्जेक्ट्स के लिए रेफर करनी है। स्टैटिस्टिकल की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अभी, बट क्वांटम के लिए ये है। क्वांटम के लिए आपको वाई के लिंक करनी है। फिर अनदर वन इज लाइक उथर है किरियाकोस टामाकीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है ये, और बुक का नेम क्या है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको रिसोर्सेज 3-4 बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको हर रिसोर्स में जा जाके करना है। एक बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो मान लो वाई के लिंक से, बट यू गेट बोर्ड, तो क्या हुआ, बुक चेंज कर लो। बुक चेंज कर सकते हो ना बीच में, क्योंकि इनके अंदर वही टॉपिक्स हैं जो तुमने मार्क किए हुए, तुम्हारे इजी टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो तुम्हें क्या करना है, इस बुक से थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लो, यहाँ से थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लो, और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मेन मुद्दा है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें वाई के लिंक के सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें इस बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं। हम जितने मैक्सिमम कर सकते हैं हम ट्राई कर सकते हैं, बाकी देखा जाएगा। सो अनदर वन इज, इसकी ये जो बुक है इसकी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 हमें फॉलो करनी है, उसमें थर्मो क्वांटम स्टैट 3 हुआ था, देखो क्वांटम और स्टैट इसमें भी है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक वाई के लिंक उठाई थी, क्योंकि इसमें क्वांटम के लिए एक बुक है और एक स्टैटिस्टिकल के लिए एक बुक है, और एक गाइड टू फिजिक्स प्रॉब्लम पार्ट 2, इसमें क्वांटम स्टैट दोनों है। तो मैंने ये 2 बुक उठाई थी, लेकिन बीच बीच में जब मैं बोर हो गया था तो मैंने ये वाली बुक उठाई थी, क्योंकि इसमें भी क्वांटम और स्टैटिस्टिकल है। तो ये 3 बुक्स में से आप हेरा फेरी कर सकते हो। ये वाली बुक मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं की थी। फिर ये वाली बुक शिनी एम फुसितो, दीज आर द ऑथर्स, एंड द बुक नेम इज सोल्व प्रॉब्लम्स इन क्वांटम एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो ये वाला पोर्शन, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर भी क्वांटम स्टैट है, यहाँ पे भी क्वांटम और स्टैट है, तो मैंने यहाँ से फॉलो किए थे। और आपने जब टॉपिक्स मार्क कर लिए तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात क्या है, दे हैव सॉल्यूशंस। आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही कर रहे हो, सही प्रोसीड कर रहे हो, ये बुक्स बताएंगी आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये बताएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या इसमें नया कंसेप्ट है, क्या नया वेरिएशन है, कैसे करें हम। मतलब रिसोर्सेज तो बता दिए, दे हैव लाइक 500-600 क्वेश्चन ईच बुक, तो सब तो नहीं करने हैं, तो कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे प्रोसीड करना है।
in question. So this is your week-wise plan that you can follow for dealing with those resources and those advanced problems. So this is not necessary that you are sticking it to by your heart. Take it as a journey and proceed as much as you can. ठीक है. So आप अपने आप देख लोगे कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा प्लान नहीं बना सकता मैं, और सबके एक जैसे कंसेप्ट नहीं होते, सबके एक जैसे थॉट प्रोसेस नहीं है. कोई कुछ कम क्वेश्चन कर पाएगा, कुछ ज़्यादा कर पाएगा. तो इट इज़ लाइक रफ आइडिया कि तुम ऐसा प्रोसीड कर सकते हो. नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट स्टिक टू दिस स्ट्रेटजी and you will definitely see improvements in yourself for the two subjects, quantum and statistical mechanics. तो फर्स्ट वीक पर डे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो. पर डे वन क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक, यानी कि जो आपके इजी हैं वो भी और जो डिफिकल्ट हैं वो भी. स्टार्ट विद दैट कि जो तुम्हारे इजी टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन करने का ट्राई करो. ठीक है, ट्राई, एटलीस्ट ट्राई. कम से कम अगर तुमसे सारे नहीं हो 3-4 क्वेश्चन ट्राई करो डेली के. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और टाइम लगता भी है तो इट डजेंट मैटर. आपको टाइम लग रहा है कोई बात नहीं. ऐसा टारगेट मत दे देना अपने आप को कि मुझे 1 घंटे में 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में. तुम पहली बार कर रहे हो उन क्वेश्चन को. मैंने भी पहली बार किया था, मुझे भी समझ नहीं आया था. यू हैव टू गिव इट टाइम. टारगेट मत बनाने लगा कि मुझे ये 4 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं. नहीं हुए ना तो डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. फ्री टाइम लेके बस मुझे ये 4 क्वेश्चन करने हैं, कितना भी टाइम लगे, हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, हो सकता है आपको 2.5-3 घंटे भी लग जाए, बट ये तुम्हें इम्प्रूव करेगा. ठीक है, तो ऐसा टारगेट मत ले लेना, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. और देखो बार बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो वैसे भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तुम्हारा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. कुछ नया करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एक्टिव, योर माइंड विल गेट शार्प एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर मार्क्स इन द दिसंबर नेट एग्जाम. जो कर रहे हो हमेशा से थोड़ा चेंज करो, ट्राई समथिंग न्यू, फिर देखो कैसे इंप्रूवमेंट होगा. सेकंड वीक में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इजी टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक जो आपने मार्क किए हुए हैं उनका एक एक क्वेश्चन पर डे, एक क्वेश्चन ईच टॉपिक. जैसे मान लो तुम्हारे इजी 5 टॉपिक है, डिफिकल्ट भी 5 है, तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए. अब अगर तुम कर सकते हो 10 तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 4 भी हो जा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू. थर्ड वीक में मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ लेवल को. वैसे ही तुम्हें भी देखो इंक्रीज करना है. जैसे मैंने इजी टॉपिक के लिए आपके 2 क्वेश्चंस कर दिए, डिफिकल्ट के लिए 1 क्वेश्चन कर दिया. अगर तुम थर्ड वीक में इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, इस स्टेज तक पहुंच पाए इट्स वेल एंड गुड, बट प्रैक्टिस हर दिन करनी है, हर दिन, मतलब 1 वीक 7 दिन, 1 वीक 7 दिन. तो 7 डे आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं. ठीक है, तो थर्ड वीक में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा. फोर्थ वीक में इजी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं करना है. ट्राई करो कि जो तुम्हारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, तुम उनके 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करो डेली. अगर तुम्हारे डिफिकल्ट टॉपिक 4 या 5 है तो पर डे 10 क्वेश्चन हो गए आपके, पर डे 10 क्वेश्चन हो गए. अब हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए इसमें, तो जिसके पास टाइम है वो कर सकता है. जिसके पास टाइम नहीं है, जैसे और भी सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, उनका थोड़ा कुछ पेंडिंग है, तो वो थोड़ा कम क्वेश्चन कर ले, लाइक 4 कर ले, 5 कर ले, बट करना है. फिर उसके बाद फिफ्थ वीक में मैं कर रहा हूँ इजी टॉपिक्स के 3 क्वेश्चन, जो भी आपके इजी टॉपिक आपको लगते हैं मार्क कर लो पहले, और उनके 3 क्वेश्चन. फिर 6th वीक में ट्राई करो इजी के 2 क्वेश्चन और डिफिकल्ट टॉपिक के भी 2 क्वेश्चन. मतलब धीरे धीरे अभी इसमें देखो क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ गई है. फिर 7th वीक में रैंडम कोई भी बुक उठा लेना और कोई भी टॉपिक उठा लेना, इजी हो डिफिकल्ट हो डजेंट मैटर, मिसलेनियस टॉपिक भी आपको मिलेंगे, उसमें से ट्राई करना कि आपको 4 क्वेश्चन पर डे ट्राई करने हैं 7th वीक में. मतलब 7 दिनों के लिए तुम अगर हर दिन 4 क्वेश्चन करते हो तो आपके टोटल 28 क्वेश्चन हो गए मिसलेनियस टॉपिक्स के, जिनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि किस में आ रहे हैं. ठीक है, और ये जो तुम्हारी जर्नी है इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद भी समझ नहीं आएंगे, तो उन पर लगा लेना डाउट. एक कॉपी बना लेना जिसमें लिख लेना कि ये बुक है, इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन मेरा डाउट है. और लास्ट में 8th वीक में रिवाइज कर लेना जो आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनमें से ही कुछ ऐसा वेरिएशन आ जाए कंसेप्ट का
जो आपको एग्जाम में लग रहा हो, तो थोड़ा रिवाइज कर लोगे, क्योंकि देखो जो फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में किए होंगे, फोर्थ वीक में किए होंगे, हो सकता है जो नया वेरिएशन आ रहा है वो आप भूल गए हो। तो एक बार अगर आप उन्हें लास्ट में जाते हुए रिवाइज करोगे, डाउट सेक्शन में डाल दोगे, तो यू विल डेफिनेटली सी कि तुम्हें वो चीज़ याद रह रही है उस टाइम की यहाँ तक, और नहीं याद रह रही तो रिवाइज हो जाएगी। तो जो आपने किया था ऐसा नहीं है कि वो यूज़ नहीं आएगा, यूज़ आएगा, ठीक है। तो इस जर्नी पे स्टिक करो और ट्राई करो कि आप अपना लेवल इंक्रीज करो। क्वेश्चंस का जो नंबर है वो हर वीक के अकॉर्डिंग इंक्रीज करो, हर डे नहीं बोल रहा मैं। एक वीक में कंसिस्टेंसी के साथ 3-3 क्वेश्चन किए तो ट्राई करो नेक्स्ट वीक में हर दिन 4-4 क्वेश्चन करने की, बस इतना सा करना है। नोट्स नहीं बनाने हैं उसके, आपको वो पूरा सोल्व नहीं करना है। एक बार देखो दिमाग में स्ट्रैटेजी, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो कैसे, तो इससे तुम अटेंशन के साथ क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओगे। नया क्वेश्चन आएगा उसे पढ़ना सीख जाओगे, टैकल करना, आपका माइंड कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे सिनेरियो क्रिएट करेगा, फिर कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है वो देखेगा। दिमाग में ट्राई करना, फिर थोड़ा कॉपी पे करके देखना, और अगर नहीं होता तो सॉल्यूशन देखना कि उसने कैसे किया, उसने कैसे डील किया प्रॉब्लम को। तो यू विल सी बेनिफिट्स इन योर सेल्फ आफ्टर दीज 2 months ऑफ प्रैक्टिस। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए भी ऐसे ही है, तुमने देख लिया। यही लगभग मैं प्लान सजेस्ट करना चाहूँगा, यही रिसोर्सेज हैं जो मैंने आपको बुक्स बताई, वो लगभग क्वांटम के लिए भी थी और स्टैटिस्टिकल के लिए भी थी। कुछ बुक्स में तो दोनों मिला के है, मतलब एक बुक में क्वांटम है हाफ पार्ट में, हाफ में स्टैटिस्टिकल है और सॉल्यूशंस है। तो आप ये जो स्ट्रेटजी है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मुझसे भी क्वेश्चंस नहीं होते थे, बट मैं करता रहता था, स्टिक रहा ऐसे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितने मुझसे हो रहे थे, एंड डेफिनेटली मुझे बेनिफिट हुआ। जो कट ऑफ से हम 10-15 नंबर नीचे रहते हैं ना, वो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से है, क्योंकि ये जो न्यू वेरिएशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, ये हम टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा टाइम भी खत्म हो जाता है उधर। क्योंकि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे सेंटर पे क्या हुआ था, 15 से 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, और मेरा एग्जाम था फैब में। तो जब फैब में आपको पता है कि इट्स विंटर, बाहर अंधेरा हो जाता है, लाइट चली गई अंदर तो अंदर अंधेरा हो गया। सिस्टम चालू थे, क्योंकि जनरेटर से वो कनेक्टेड थे, सिस्टम चालू था, बट जो कॉपी पे लाइट आ रही थी वो सिर्फ सिस्टम की लाइट आ रही थी, बाहर की सब लाइट बंद थी। और जो इन्वायरमेंट की लाइट तो वैसे ही बंद हो गई थी, क्योंकि बिकॉज इट्स विंटर और एग्ज़ाम की टाइमिंग थी कुछ 3 से 6। तो वो तब तक बस मेरे 2 क्वेश्चन मिस हुए थे पार्ट सी में जो मैं कर सकता था, और पार्ट बी में भी एक क्वेश्चन था जो मैं कर सकता था। मेरे को मतलब थर्ड राउंड के लिए जाना था, फर्स्ट राउंड मेरा हो गया था, सेकंड राउंड हो गया था, थर्ड राउंड पे मैं जा रहा था, बट वो मैं नहीं कर पाया थर्ड राउंड, मेरे क्वेश्चन मिस हो गए। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाओ प्रैक्टिस के थ्रू, और इजी क्वेश्चन तुम्हारा मिस हो जाए, जैसे मेरे 1-2 क्वेश्चन मिस हो गए थे। क्योंकि वो थर्ड राउंड में मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि वो टॉपिक्स मेरे लिए थोड़े न्यू थे, तो इसलिए मैंने एक बार छोड़े थे उन्हें, लेकिन जब मैंने बाद में आके देखा, आई वॉज एबल टू डू दैट क्वेश्चन इन माई ओन। सो आपके साथ ऐसे होता है, जो आप एग्ज़ाम में बैठ के देते हो सिनेरियो वो टफ होता है, तो जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे टफ क्वेश्चंस की, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। सो prepare for the worst and hope for the best. So this only I can say, and stick to this strategy, you will see improvements in yourself, and best of luck for your exams. Thank you.